لیکن اگر اللہ چاہے باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں پھر بھی پیدا کر دے کسی زندہ کو، جانتے ہو کیسے؟ صرف اور صرف ایک پتھر سے حضرت صالح علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میری اس امت کو کوئی ایسی چیز دکھا دے کہ تیری قدرت پر انہیں یقین ہو۔ آپ کو حکم ہوا کہ اس پتھر پر ہاتھ رکھیں۔ ایک پہاڑ کے پتھر پر آپ نے ہاتھ رکھا تو اس سے ایک اونٹنی کا بچہ پیدا ہوا۔ تاریخ آپ کو پتا ہے، جس اونٹنی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اللہ اگر چاہے تو کسی ایسی چیز سے پیدا کر دے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت نے یہ توکل اور یقین سکھایا تھا۔ علم آپ اس میں بڑے ماہر تھے، اور کئی ایسی چیزیں میرے عزیزو جہاں تک ہمارا دماغ بھی نہیں جاتا، عقل بھی کام نہیں کرتی۔ اب ان کے جو علوم ہیں ایک ایک کر کے میں بیان کروں تو بہت طویل وقت ہو جائے، صرف آپ جو سمجھ پاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ان علوم کی مہارت کی وجہ کیا ہے اس کی طرف میں لے آنا چاہتا ہوں۔ ہم غور و فکر کر کے دیکھتے ہیں، کوئی پڑھ لکھ کر کے بھی آدمی اتنی ساری چیزیں نہیں کر پاتا۔ آپ کتنے علم میں ماہر ہو سکتے ہیں؟ سائنس کا اسٹوڈنٹ پورا سائنس میں اپنا دماغ کھپا چکا ہے، اس کو پھر دوسرے چیزوں میں دماغ لگانے کی وہ نہیں۔ اب انجینئر سے کہیں کہ تو آپریشن بھی کر دے تو کہے گا میری فیلڈ نہیں۔ ڈاکٹر سے کہیں کہ تو گھر بنا دے یا پلان دے دے تو کہے گا میری فیلڈ نہیں۔ حالانکہ انجینئر اور ڈاکٹر دونوں سائنس سے ہی نکلے ہوئے ہیں، ہوتا یہی ہے نا۔ انجینئر بھی سائنس کی شروعات میں ہی آیا، اور بس یہ ہے کہ وہ بایولوجیکل ہو گیا اور یہ اسٹیٹ میں چلا گیا، جیسے بھی اس کی فیلڈ چینج ہوئی۔ پھر اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کیا ہوا، وہ الگ سائنس والا ہے، وہ بھی انجینئر کہلاتا ہے۔ لیکن کمپیوٹر سائنس کیا ہوا انجینئر، اس سے کہہ دو گھر کا پلان دے دے، وہ بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں میں آئی ٹی فیلڈ والا ہوں، مجھ سے پوچھو کمپیوٹر کی چیزیں یہ نہیں۔ اچھا کمپیوٹر کے معاملات میں اور ایک انجینئر ملتا ہے، میکینیکل انجینئر ہے، اس سے پوچھو تو پھر وہ اپنی فیلڈ کے باہر نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک علم میں جب کوئی بندہ ماہر ہوتا ہے، یہ ڈگریاں ماہر بنانے کے لیے تو ہیں۔ آپ جو گریجویشن کر رہے ہیں یہ ایک فیلڈ میں ماہر بننے کی، لیکن ہم نے دنیا میں دیکھا جو جس فیلڈ میں ہے وہ دوسرے کو ٹچ ہی نہیں کر رہا۔ ڈاکٹرز کی بھی فیلڈ اب بدل گئی ہیں۔ پہلے کے تھے جو فزیشین جو سب چیک کر لیتے تھے، تمہارا آنکھ بھی، کان بھی، ناک بھی، پیٹ بھی، گھٹنا بھی، سر بھی، سب کر لیتے تھے۔ اب ایسا نہیں، سب کے ڈاکٹر الگ ہیں، سب الگ ہیں۔ ناک میں کوئی تکلیف ہو تو الگ ENT کے پاس جاؤ، نہیں عام ڈاکٹر نہیں دیکھے گا۔ ہاں کڈنی والا نیفرولوجسٹ وہ الگ چلے جائے، دل والا الگ ہے، کارڈیو، سب کے الگ الگ میدان بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ایک ہی باڈی کے سب ڈاکٹر ہیں۔ اللہ نے کیسے وقت میں برکت دی ان کے، اس وقت میں تو سوچتے سوچتے جماعت کا وقت ہو جاتا ہے۔ ہاں امام کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھوں، دوسری رکعت میں کیا پڑھوں، اسی میں تو مؤذن اقامت بول دیتا ہے، اتنے ٹائم میں کچھ ہو نہیں پاتا۔ اور ایک امام احمد رضا خان ہے کہ 170 کے قریب اشعار بارگاہ مصطفیٰ میں لکھ دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو، جو حضور کا ہوتا ہے وقت بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، لیکن وقت کی جان رسول اللہ ہیں، اور جو ان کو تھام لیا ہر وقت اسی کا ہے۔ صبح اسی کی ہے، دوپہر اسی کی ہے، شام اسی کی ہے، اور ہر زمانہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کا ذکر ایسے کر رہے ہیں، 100 سال پہلے والے، 100 سال ہو گئے ان کے انتقال کو، لیکن ایسا کر رہے ہیں جیسے اپنے باپ داداؤں کا بھی نہیں کرتے۔ جو بھلائے جا چکے ہیں اکثر تو قبرستانوں میں گئے، ان کے تذکرے ختم ہو گئے، لیکن ایک عاشق صادق کا تذکرہ ایسا ہے کہ صرف ذکر کرو تو محفل میں گرمی آ جاتی ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، یہ گرمی کا اثر آج بھی اللہ نے اس نام میں رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں دیا جاتا یہ سب کمال کہ تم اونچی پگڑی والے ہو، اونچے خاندان والے ہو۔ یہ سب کمالات اس لیے نہیں دیے جاتے کہ تم فلاں کالج میں پڑھ کے آئے، فلاں مدرسے میں پڑھ کے آئے، فلاں باپ کے بیٹے ہو، اس لیے نہیں دیا جاتا۔ اس دنیا میں کمالات اگر کسی کو دیے جاتے ہیں تو رسول اللہ کے قدموں کی نوکری کی برکت سے دیے جاتے ہیں۔ جو عزت رسول پر پہرا دیتا ہے اللہ اس کی عزتیں بہت بلند کرتا ہے۔ جو ناموس رسالت پر پہرا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو کبھی کم ہونے نہیں دیا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، آج بھی ایک قصیدہ آپ پڑھتے ہو، مولا صلی وسلم دائما ابدا، آگے علی حبیبک خیر الخلق کلہم، قصیدہ بردہ یہ پرسوں کا لکھا ہوا نہیں ہے،
साल पहले का लिखा हुआ नहीं है, आज से 800 साल पहले का लिखा हुआ है। शरफ उद्दीन बूसीरी ने इस पूरे कसीदे में रसूलुल्लाह की ऐसी मदह सराई की है, मेरे आका की शान ऐसे बयान की, और भौंकने वाले कुत्तों का इसमें जवाब दिया है। तुम हो हाफिज, सुना है आपने? उनके जमाने में उनकी फौज को और उनको हराने के लिए नए नए फितने आए थे जो दुनिया में उससे पहले आए ही नहीं थे। पोर्नोग्राफी जो आज आम हुई है, नंगी तस्वीरें देखना, ये सलाउद्दीन अय्यूबी की फौज में लाकर डाला गया था सबसे पहले, कि जब ये पोर्नोग्राफी करेंगे तो इनकी ईमानी ताकत कमजोर हो जाए और इन पर हम हमलावर होकर के काबिज हो जाए। एक फितना यह है। एक और फितना था उस जमाने का, हसन बिन सबार, एक दुर्वेश आदमी, बुजुर्ग बना हुआ, सूफी बना हुआ, खानका भी बनाया, और उस पे 4 दीवारी में कुछ नौजवानों की तरबियत कैसे किया, कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ये बुजुर्ग तरबियत ऐसा कर रहे हैं सारे नौजवानों कि एक शरबत उनको पिलाया जाता था, हशीशीन यानी ड्रग्स थे उस जमाने के, और वो शरबत जैसे ही वो पीता है, नौजवान ऐसा पागल होता है। एक सड़े हुए पत्थर को दिखा करके उसको कहा जाता ये जन्नत का हसीन महल है, तो वो नौजवान उसकी तारीफ में लग जाता, कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है, मुझे यहाँ से चमकी दिख रही, इधर से चांदी दिख रही, इधर से सोना दिख रहा है, बाकी का वो करने लगता है। और गटर का पानी अगर उसको दिखाकर कहा जाए ये जन्नत की नहर है, तो वो ड्रग लिया हुआ नौजवान तारीफ करने लगता, अरे ये दूध से ज्यादा सफेद है, ये तो ये बर्फ से ज्यादा ठंडा है, यकीनन ये जन्नत की नहर है। उनको जन्नत बनाकर दिखाई गई थी उस खानका के अंदर, जबकि वहां कूड़ा कचरा के अलावा कुछ नहीं था, वो चर्सियों को रखने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उनका दिमाग देखता था जन्नत है पूरा। इसलिए कि दुनिया में ऐसे कुछ नशे की चीजें हैं जिसको इस्तेमाल करने के बाद मंजर बदल जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी करीब लाता हूं आप। ये करके उनको क्या किया जाता था, वो पागल हो जाते थे, अगर उनको ना दिया जाए तो उनके हाथ पांव कांपने लग जाए, और सजा के तौर पर किसी भी वो खानका के अंदर मौजूद नौजवानों को सजा देना हो तो बाउंड्री से बाहर कर दिया जाए, तड़प तड़प के वो नौजवान मर जाता था कि मुझे जन्नत में ले लो वापस, जन्नत में मुझे ले लो। उस पर शर्त रखी जाती थी, जन्नत में वापस आना है तो फलां का मर्डर करके आओ। टारगेट किलर होते थे वो। ऐसे नौजवानों को तैयार किया गया था। 4 मर्तबा खूनी हमला किया था सलाउद्दीन अय्यूबी पर, इसी के खानका के बने हुए लोगों ने। वो ड्रग्स ऐसे लेते थे, नशा ऐसा, लेकिन उनको ये नहीं कहा गया था कि ड्रग्स है, ये नशा है, बस शरबत पिलाया जाता था। आज कुछ ऐसे ढकोसले हैं आए हुए हैं जहां नौजवानों को इस तरह की चीजें पिला करके उनका माइंड पूरा प्रोग्रामिंग में ले लेते हैं, और नौजवान बेचारा ये सोचने में बेचारा रह जाता है, उसको लगता है नहीं वहां जाने के बाद मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। उस नशा में, मैं जानता हूं आज भी वो नशा मौजूद है, आज लिक्विड में मिलता है, उसका एक कतरा खाली जुबान पर लगाओ, इसलिए कि भाई सारे नशे पता है रह के आने वाले को, सब पता रहते हैं, हाँ कैसे कैसे नशे है उस पे सब पूरी पीएचडी हो गई है। एक लिक्विड नशा, उसका एक कतरा जुबान पर, क्यों नाम नहीं बोल रहा कि कोई एडिक्ट हो तो जाके ढूंढने ना लग जाए। क्या मुफ्ती साहब ने जो रेफरेंस दिया वो कहाँ मिलता है, बाकी हमें सब पता है, कोकेन, अफीम, चरस, गांजे, किसमें कितना लगता है, केस क्या क्या है, ये एमडी कहां से आई, सब चीजें जानते हैं। लेकिन ऐ नौजवानों, उनमें खतरनाक नशा, इतना कतरा अगर जुबान पे लगाता है तो 36 घंटे तक उसको ये दुनिया का मंजर पूरा बदला हुआ दिखेगा। ये दिखेगी ही नहीं, दुनिया ही नहीं है, उसको हसीन बागात, उसको नहरें, पता नहीं क्या क्या नजर आते हैं। ये आज भी मौजूद है। इजरायली मिलिट्री ने उसको इजाद किया था, और इससे पहले एक ड्रग्स था जिसको हिटलर की नाजी ने इजाद किया था। अब मैं आपको बताता हूं, ये नशा करने वाला नशा करके नाच गाने करके आ गया अलग बात है, लेकिन ये किसी शैतान के हाथ लगा जो पीर बन करके या सूफी बन करके नौजवानों को इसका इस्तेमाल करा करके फिर उनको तस्वुरात लेकर के आए, कहे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसको सब दिखेगा, सब दिखेगा, और वो शरीयत का बागी बन जाएगा। मेरी बात सुन करके रख लो, एक दिन होगा वो रसूलुल्लाह को गालियां देने लगेगा। ये हल्की बात नहीं है। जो शरीयत से मजाक कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये अलग मसला है, उनका अलग मसला है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक जमीन है, उस पर दरख्त है, दरख्त के ऊपर फल है, और फल के अंदर मगज है। समझ में आई बात समझ में आई? अब मैं आपसे पूछता हूं कि फल तो है लेकिन मगज नहीं हुआ अभी, तब भी समझ में आया? ठीक है। मैं कह रहा हूं दरख्त है लेकिन फल नहीं हुआ उसमें, तो आप कहेंगे हो सकता है,
पॉसिबल है, अभी नहीं आया। लेकिन मैं कह रहा हूं जमीन है ही नहीं, दरख्त है। मानेंगे आप? मानेंगे नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, सैयदना अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके अखलाफ में से बुजुर्ग हैं, उन्होंने इसकी तशरीह की। शरीयत जमीन का नाम है और उस पर उगने वाले दरख्त को तरीकत कहते हैं और उस पे आए हुए फल को मारिफत कहते हैं और उसके अंदर मौजूद मग़ज़ को हकीकत कहते हैं। और जिसके पास जमीन ही नहीं वो मग़ज़ की बात कर रहा है, जमीन ही नहीं पौधे पेड़ की बात कर रहा है, फल की बात कर रहा है। पॉसिबल है? नहीं हो सकता। इसीलिए एक बात याद रखो, शरीयत ये कोई उलमा का, मौलवियों का, मुफ्तियों का लिखा हुआ कोई निसाब नहीं। शरीयत पूरे मेरे रसूलुल्लाह की अदाओं का नाम है और जो इससे बेगाना होकर के कुछ चाहे, कान खोल कर सुन लो, बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत गलत, ये हवस बेबसर की है। अल्लाह ताला उनके बगैर तुझे कुछ दे दे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं। तो एक बात याद रख लो, जो रसूलुल्लाह का नहीं वो अल्लाह का नहीं हो सकता। मैं मानता हूं ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। ये शरीयत को मजबूती से थामे रहो। आज के जमाने में नौजवानों, तुम्हारे अकीदे, तुम्हारे अमल, तुम्हारी सारी चीजों की हिफाजत मसलक आला हज़रत से होगी। मसलक आला हज़रत को ऐसे थाम करके रखो कि कोई शैतान आकर के तुम्हारा अकीदे को गुमराह ना करे, तुम्हारे अकीदे को ना बिगाड़े। मैं उन नौजवानों को देख करके अफसोस करता हूं जो अब नमाजों को छोड़ चुके, वो जुमा, तरावी सब कुछ छोड़ चुके। वो कहते हैं नहीं, ये हमारे लिए नहीं, हम दही बने हुए हैं ना, ये लोग दही बने हुए हैं। वो कहते हैं शरीयत दूध का नाम है और दूध से दही बन गए तो दही वापस दूध नहीं बन सकता। अभी आओ फरिश्ते तुझे सब बना के दिखाएंगे क्या क्या बनेगा मेरे मुस्तफा की शरीयत छोड़ के। अरे दही क्या बनेगा? फरिश्ते जब कब्र में आएंगे और फिर पूछेंगे हुजूर को दिखा करके इनके बारे में क्या कहता था। तो शरीयत अगर जानता है और उनके कदमों से वाबस्ता रहा तो ही बोल पाएगा, वरना हा हा लादरी करता रहेगा, नहीं बोल पाएगा। इसीलिए थाम लो दामन उनका आसियो, है वही बख्शवाने वाले। मेरे अजीजों, आला हजरत के इस शेर पर अमल करके जाएं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब दरिंदे भौंकते थे तो आला हजरत का कलम जवाब देता था। आज हमारी जुबानों पर जो ताकत है कुछ, वो आला हजरत के अशार की बरकत है। बारगाह में ये सुन्नी का अकीदा है। एक जुमला मैं कहता हूँ हर मजमे में, एक जुमला वो आला हजरत के शेर का आधा टुकड़ा है और बाकी सारे मजमे का अकीदा खुद बोल पड़ता है। वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो, ये है सुन्नियों का मिजाज। और कुछ मजमों में जाकर के पूछो तो हैं करेंगे, वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो, जान है वो जहान की और जान है तो। हमको पता है सुन्नी सो सकता है, मरा हुआ नहीं होता, और सोने वाले में मरे हुए में फर्क होता है कि नहीं। और हम करंट लेकर के आते हैं, हम करंट लेकर के आते हैं, और करंट अगर 10 वाट का भी किसी को लगाओ, सोया हुआ है तो क्या करेगा? उछल जाएगा। हम थोड़ा सा भी करंट लगाएं, ये उछल जाते हैं। क्यों? ये सोए थे, हमने करंट लगाया उठ गए। और कुछ वो लोग हैं जो मरे हुए, 1000 वाल्ट का भी लगाओ काले ही